Good morning, students. In today's video, we are going to discuss about voice. As you can see here, there are two types of voice: active voice and passive voice. In active voice, we emphasize on subject, and in passive voice, an object is emphasized. It means if the sentence is in active voice, you will see subject at the beginning of the sentence, whereas if the sentence is in passive voice, you will find an object at the beginning of the sentence. इट मीन्स अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो आपको सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट की सिग्निफिकेंस है वी फोकस ऑन सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस। और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट मिलेगा, बिकॉज वी फोकस ऑन ऑब्जेक्ट इन passive voice. Alright, so let's understand this in a better way by few examples. Look at the example. She broke a cup. She broke a cup. Now first of all we will see how subject or object function in a sentence, so that it will be easy to understand for you. First of all, we will see what the subject is. So as you know, the doer of the verb is called subject. The doer of the action is called subject. जो भी आपकी verb को करता है, जो भी आपके action को करता है, वो ही आपका क्या होता है? Subject होता है. Okay, so this is verb, this is action here, and who did this action? किसने तोड़ा इसको? Okay, ये action किसने किया? So for who broke a cup? Okay. For picking out a subject, we will ask a question of who from the verb. Verb से आप question करोगे who का, subject निकालने के लिए. Alright. So here who broke the cup? Definitely she. So here she is the subject. Alright. And object is the receiver of the verb. Receiver of the verb or recipient of the verb. So as you know, there are two kinds of object: direct object or indirect object. To pick out direct object, we will ask a question of what? Okay. Now, what did she break? What did she break? You can see the clear answer here: a cup. So this is a direct object. Okay, so as you can see, the subject is at the beginning and the object is after the verb. That's why the sentence is in active voice. इसलिए हमारा sentence किस में होगा? Active voice में होगा. Okay, look at the another example. A cup was broken by her. Okay, a cup was broken by her. अब broken करने वाला कौन है? तोड़ने वाला कौन था? she था, ठीक है, और वो तो लास्ट में आ गया, ठीक है। और टूटा क्या है? क्या टूटा था यहाँ पे? कप टूटा था, और वो स्टार्टिंग में आ गया. एज यू कैन सी द ऑब्जेक्ट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो ब्रेक करने वाला यहाँ पे कप नहीं है, कप ने किसी को नहीं तोड़ा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा पहले आ गया है तो दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस. या दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस एंड द अनदर सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस. यू कैन सी एट द मोर एग्जांपल. Yeah, she gave me a book. Now you can see who gave me a book. Who gave me a book? जो gave है, जो action है, ये किसने किया है? she ने किया है definitely. तो she is here subject. Who gave me a book? she. Okay. To whom, या फिर हम कह सकते हैं what did she give me? What did she give me? उसने मुझे क्या दिया? A book. So a book is here direct object, isn't it? Now another, do we have indirect object as well in this sentence? Let's check it. So to whom did she give a book? किसको दी उसने book? To me. Okay, so here it will be indirect object.
Okay, so as you can see in the sentence, whether you have to check whether the sentence is in active voice और passive voice. आपको ये चेक करना है कि sentence active voice में है या passive voice में है. ये कैसे डिसाइड करोगे? Look at the subject. Subject हमारा स्टार्टिंग में आ रहा है. गेव किसने किया है? शी ने किया है और सी स्टार्टिंग में आ गया. सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ गया. इट मीन्स द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस. सेंटेंस हमारा किस में हो गया? एक्टिव वॉइस में है. ओके, नाउ यू सी the sentence can be like this also. I was given a book. Was given a book by her. Okay, or you can find the same sentence like this as well. A book was given to me by okay, now you see the actually what is there? Give action है, तो हमने जो गिव करने वाला है, बुक देने वाला है, वो आई तो नहीं है, मैंने तो नहीं दी थी किसी को. आई तो यहाँ पे क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो गिवन का एक्शन आई नहीं कर रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हो आई यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इट इज द रेसिपिएंट ऑफ द वर्ब. तो आपका ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है और आपका सब्जेक्ट तो कहाँ पे आ रहा है? लास्ट में. गिव करने वाला कौन था? शी था. हमने ऑब्जेक्ट बना के उसको हर में डाल दिया है. ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, तो ये सेंटेंस किस में हो गया? पैसिव वॉइस में हो गया. और इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पहले ला सकते हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पहले ला सकते हो. अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हर. सो हियर दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आप कह सकते हो कि गिवन का जो एक्शन करने वाला है, बुक थोड़ी ना कुछ कर रही है यहाँ पे, बुक कुछ नहीं कर रही है. ठीक है, तो हमें पता है कि बुक यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. एक्शन करने वाला यहाँ पे बुक बिल्कुल नहीं है. तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ये सेंटेंस किसमें है? पैसिव वॉइस में है. तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वेदर द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. ओके, बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, आप सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है. दिस इज द मेजर रूल. ओके, टू आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. ठीक है, तरीका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है ये कि अगर सब्जेक्ट पहले आ रहा है तो आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, और ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है तो आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में है. द सेकेंड वे टू आइडेंटिफाई द वेदर द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या होता है? देखो, एक्टिव वॉइस में वी यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. ठीक है, एक्टिव वॉइस पे जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स मिलती हैं वो आपको अलग अलग मिलेंगे. ठीक है, एक जैसी नहीं मिलेंगे. कभी V1 मिलेगा, कभी V2 मिलेगा, कभी V3 मिलेगा, कभी V4 मिलेगा. ING भी लगी होती है, कभी एस और यस मिलेगा. ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस में ये सर्टेन है, ये डेफिनेट है कि आपको हमेशा थर्ड फॉर्म मिलेगी, V3. आप सबको पता है कि वॉच वर्ड किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? कॉन्टिन्यूअस. और वॉच वर्ड के बाद आपको मिलती है V4, ना कि V3. लेकिन पैसिव वॉइस में आपको हमेशा क्या मिलेगी? V3. और आप कह सकते हो पास्ट पार्टिसिपल. थर्ड वे टू आइडेंटिफाई. तीसरा तरीका क्या होता है इसको आइडेंटिफाई करने का कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है? आपको पैसिव वॉइस में बाय मिलेगा, लेकिन एक्टिव वॉइस में आपको बाय नहीं मिलेगा. इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन. ओके, प्रेपोजिशन की तरह वो यूज हो सकता है, लेकिन बाय से कभी ऑब्जेक्ट कनेक्ट नहीं होगा, ये सब्जेक्ट कनेक्ट नहीं होता. आपको पता है कि जस्ट बाय के बाद हम यहाँ पे किसको कनेक्ट कर रहे हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिख रहे हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट होता है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में. आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो कि वेदर द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. नाउ लेट्स सी हाउ टू फॉर्म द सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस आप कैसे बनाओगे, ये अब हम देखते हैं. सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस को देखेंगे. ठीक है, बाकी तुम्हारे टेंस वाइज दिया हुआ है. सो वी विल सी दैट हाउ द प्रेजेंट टेंस इज कन्वर्टेड इनटू
पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे दैट वी विल सी। सो फॉर कन्वर्टिंग एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस बेटा वी हैव टू फॉलो 5 rules and these are the major rules. If you know these rules, okay, the topic will be quite easy for everyone. अगर आपको ये 5 रूल्स आते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इजी बन जाएगा। सो रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल हम क्या फॉलो करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ओके उसे आप क्या बना दोगे, सब्जेक्ट बना दोगे। मीन्स कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमें कहता है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसे आप सब्जेक्ट बना लो। ये पैसिव वॉइस का फर्स्ट रूल होता है। द सेकेंड रूल, यूज हेल्पिंग वर्ब। यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी नहीं बनता है, तो पैसिव वॉइस में आपको हेल्पिंग वर्ब जरूर यूज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस देख रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करोगे, लेट्स सी दिस। प्रेजेंट टेंस में आपको जो मेन वर्ब है वो क्या क्या मिल सकती है, आपको मेन वर्ब मिलेगी या तो V1, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको मिलेगा S और ES, ठीक है। आगे सेंटेंस नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। इफ द सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, डेफिनेटली इट विल कंसिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब एज वेल, डज या डू प्लस V1, ठीक है। अगर आपके सेंटेंस में V1 है, S और ES है, डू डज है या V1 है, तो आप पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, इज, एम और आर। सिंपल हो गया, ठीक है। अगर आपका एक्टिव वॉइस में V1 S और ES है, डू या डज V1 है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या यूज करनी है, इज, एम, आर, ठीक है। सेकेंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर आपको मिलता है तो आप क्या करोगे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप सबको पता है कि हेल्पिंग वर्ब आपको ऑलरेडी मिलेगी वहां पे, इज, एम, आर और प्लस V4 आपको मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, अगर इसेमार पहले से ही वहां पर होंगे तो आप पैसिव वॉइस पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाओगे, तो पता है क्या रूल होता है, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेंगे, ठीक है। इसमें भी हम इज, एम, आर ही यूज करेंगे, इज, एम, आर। अब देखो ये तो सेम हो गए दोनों। सिंपल प्रेजेंट में भी इज, एम, आर यूज कर रहे हो और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी हमने क्या यूज कर लिया, इज, एम, आर। तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो डिफरेंस हम क्या क्रिएट करेंगे, आप सबको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगता है, लेकिन अब यहाँ पे जो हम V4 यूज करते हैं उसमें आईएनजी लगता है, लेकिन पैसिव वॉइस में तो हम आईएनजी वाली फॉर्म यूज ही नहीं कर सकते। हम क्या यूज करते हैं, वहाँ पे V3 ही यूज करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे देखना, बी लगाएंगे और बी में आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। तो इज, एम, आर तो वहां पर रहेगा ही, और इज, एम, आर के साथ साथ आपको क्या लगाना है, बीइंग भी वहां पे लगाना है, टू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ओके, तो ये सिंपल हो गया। नेक्स्ट प्रेजेंट का होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या करोगे देखना, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है कि आपको मिलने वाला है हैज या हैव, ठीक है, और उसके साथ V3 आपको मिलेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हैज और हैव तो रहेंगे वहां पे, ठीक है, सेम रहेंगे, हैज और हैव तो रहेंगे, हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, हैज और हैव तो रहेंगे। इसके साथ हम लगा देंगे बीन, मतलब हैज बीन और हैव बीन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये, यूज HV, हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसे ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा रूल नंबर 3, जो है वो आपको कहता है कि यूज V3। यूज V3, पैसिव वॉइस में हम हमेशा V3 यूज करते हैं। इस रूल को आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी टेंस हो, नो मैटर विच टेंस इज दिस, थर्ड जो प्लेस होगा वो किसका होगा, V3 का ही होगा, थर्ड फॉर्म ही आपको यूज करनी है। ओके, रूल नंबर 4 हमें क्या कहता है, यूज बाय। यूज बाय, आपको हमेशा क्या यूज करनी है, बाय यूज करना है,
ठीक है। और नेक्स्ट रूल जो है, फिफ्थ रूल, जो लास्ट रूल है, वो हमें कहता है कि कन्वर्ट द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। आपको अब क्या करना है, आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आपको क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है बेटा। दीज आर द मेजर रूल्स टू कन्वर्ट एनी एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए ये 5 रूल्स बहुत बड़े हैं। ये प्रेजेंट टेंस हम देख रहे हैं, सिर्फ प्रेजेंट टेंस ही करेंगे आज। सो लेट्स हैव अ लुक अगेन। सबसे पहले आप ये, हाँ, ये चीज जरूर ध्यान देना कि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, लेकिन अगर आपके जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हैं वो पर्सन फॉर्म में हैं, पर्सन फॉर्म में आपको पता है कि प्रोनाउन फॉर्म में है, तो वो कैसे मिलेंगे आपको। देखो आई है, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, आपके सेंटेंस में सबसे पहला रूल है कि आपको ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो आपका ऑब्जेक्ट वहां पे क्या मिलेगा, मी मिलेगा। तो आप मी को क्या बनाओगे, सब्जेक्ट बनाओगे। तो सब्जेक्ट बनाते टाइम आप क्या लिखोगे, आई। इसी तरह से लास्ट जो रूल है वो हमें क्या कहता है कि कन्वर्ट द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट आई है और आप उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप वहां पे क्या लिखोगे, मी लिखोगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। इसी तरह से वी है सब्जेक्टिव और अस हो गया ऑब्जेक्टिव। दे कह सकते हो, या फिर यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। यू सब्जेक्टिव भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है। इसी तरह से हम लिखेंगे दे। दे जो होगा, दे की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो दैन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हो ही सब्जेक्टिव हो गया और हिम ऑब्जेक्टिव हो गया। इसी तरह से शी सब्जेक्टिव हो गया और हर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये जरूर ध्यान रखिए बेटा। इसी तरह से देखो, मैं एक सेंटेंस आपको कन्वर्ट करके दिखा रही हूँ। लाइक सी टीचेस इंग्लिश, ठीक है। अब हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपको भी पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल मैंने लिया है, तो अपने रूल्स को फॉलो करो सबसे पहले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। तो हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो किसी पर्सन में नहीं है। देखो यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं है, ये ऑलरेडी एक नाउन है। अगर नाउन है तो आप सेम नाउन फॉर्म में उसको लिख दीजिए। तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करा इंग्लिश, ठीक है। तो दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमने फॉलो कर लिया है। रूल नंबर 2 हमें कहता है यूज हेल्पिंग वर्ब। हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अब आपको पता है बेटा कि अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब बोरो करता है जस्ट नेक्स्ट टेंस से, मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। तो यहाँ पे अगर आपके सेंटेंस में आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर एक्टिव वॉइस में V1 आ रहा है, एस और ES आ रहा है, डू डज आ रहा है, V1 आ रहा है, तो आप हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या लगाओगे, इज एंड आर, तीनों में से एक यूज करोगे। तो अब आपको पता है कि इंग्लिश सिंगुलर है तो आप इस इंग्लिश के साथ क्या लगाओगे, इज लगाओगे। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, इज, इंग्लिश इज। अब रूल नंबर 3 हमें कहता है यूज V3। हमेशा आपको क्या करनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। अब आपको टीच की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो आपको पता है कि टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट होगी, ओके। दिस इज रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है, यूज बाय। रूल नंबर 4 हमें कह रहा है कि हमें क्या यूज करना है, बाय यूज करना है। तो हमने बाय यूज कर लिया है, बाय। रूल नंबर 5 कह रहा है कि कन्वर्ट द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 5 कहता है कि सब्जेक्ट को क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो। अब देखो कि आपको मैंने बताया था कि सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है, शी है, ठीक है। अब आपको या इसको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। अब आपको शी को अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको शी नहीं लिखना बेटा, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपको लिखनी है। तो सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपको पता है कि क्या होती है, हर होती है, तो आप हर लिखेंगे वहां पे। तो ये चीज ध्यान रखें कि आप जब भी उसको ऑब्जेक्ट बना के लिख रहे हो तो आप ये वाली फॉर्म लिखोगे, और जब भी आप सब्जेक्ट बना के लिख रहे हो तो आप ये वाली फॉर्म लिखोगे। जस्ट कीप इन माइंड दिस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर, ठीक है बेटा। तो ये सेंटेंस बन गया, इंग्लिश इज नॉट, सॉरी, इंग्लिश इज टॉट बाय हर।
तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बन गया है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे टीच करने वाला कौन है, शी है, सब्जेक्ट है, पहले आ रहा है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। और यहाँ पे टॉट करने वाला क्या इंग्लिश है, इंग्लिश पढ़ा रहा है यहाँ पे नहीं, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका। तो ये सेंटेंस किस में हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको नेक्स्ट टेंस का हम एग्जाम्पल देखते हैं। सेम वर्ब रखेंगे, हम वर्ब को चेंज नहीं करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में एक बार। राइट, नेगेटिव सेंटेंस देख लेना एक बार। सी डज नॉट टीच इंग्लिश, सी डज नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है, तो अब देखो ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव को अब इसको कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, रूल नंबर 1 क्या होगा हमारा, सेम होगा। देखो अब मैं तुम्हारा मेजर पॉइंट मेरा ये है बेटा, सारे रूल्स सेम होंगे, बस एक रूल नंबर 2 जो है ना वो आपका चेंज होता रहेगा, बाकी 4 रूल्स हर टेंस में सेम रहेंगे। तो फर्स्ट रूल हमारा हो गया कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, कन्वर्ट करा हमने। उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो हमें पता है कि डज आ गया, तो डू डज अगर आता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, इज एम आर लगानी है, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, इज। ठीक है, इंग्लिश इज। अब नेगेटिव है, आपको पता है कि नोट हमेशा थर्ड प्लेस पे ही आता है, तो आप नोट लगाइए, इंग्लिश इज नॉट। अब आपको क्या करना है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है, सो यूज हियर थर्ड फॉर्म, इंग्लिश इज नॉट टॉट बाय हर। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ नोट लगाया है हमने, तुम देख सकते हो सेम सेंटेंस है वैसा का वैसा। ठीक है बेटा, सो अब आप देख सकते हो इस तरह से हम सेंटेंस को चेंज करेंगे। और इसी तरीके से अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो देखना कैसे करोगे, सिंपल प्रेजेंट का ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज करोगे आप। अगर ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव में होता तो ये इस तरह से होता, डज शी टीच इंग्लिश। ओके, सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव में होता तो इस तरीके से होता। अब आपको क्या करना है, आपको इंटेरोगेटिव ही बनाना है, तो इंटेरोगेटिव की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लानी है, या तो WH वर्ड लाना है या फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लानी है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, आप सबको पता है कि डज है। ठीक है, अब डज है तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, इज एम आर ही यूज करोगे। डू डज आता है हेल्पिंग वर्ब, तो पैसिव इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डज, सॉरी डू डज आता है तो हेल्पिंग वर्ब हम पैसिव इसमें लगाएंगे इज एम आर। अब आपको पता है बेटा इज एम आर में से हम कौन सा यूज करें, हम खुद कंफ्यूज हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे नए सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि जो हमारा नया सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा। अगर हमारा नया सब्जेक्ट जो है वो आई होगा तो एम यूज करेंगे, सिंगुलर होगा तो इज यूज करेंगे, और प्लूरल होगा तो आर यूज करेंगे। हम तीनों में से नहीं पता अभी कि हमें आइडिया नहीं कि हमारे साथ कौन सा लगाने वाला है। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट वाला जो था ब्लैंक छोड़ दो, हेल्पिंग वर्ब वाला ब्लैंक छोड़ दो। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको पता है क्या करना है बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इनको इंटरचेंज कर देना है बस। रूल नंबर 2 पहले लगाना है और रूल नंबर 1 सेकंड पे ले आना है बस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है कि रूल नंबर 2 फर्स्ट पे आ जाएगा और रूल नंबर 1 सेकंड पे आ जाएगा, इनको इंटरचेंज कर दो। तो अब आपको क्या करना है, सेम चीज करनी है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि कन्वर्ट द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, तो आपका इंग्लिश है। अब आपको पता चल गया कि इंग्लिश क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो अब आपको पता है मिडल सिंगुलर के साथ आप क्या लगाओगे, इज एम आर में से तीनों में से क्या लगेगा, डेफिनेटली इज लगेगा। तो अब आप यहाँ पे इज लगा दीजिए। ठीक है, सो इज इंग्लिश। ठीक है, अब आपका बाकी रूल्स सेम रहेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा। इज इंग्लिश taught by her, taught by her, और ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक चीज ध्यान रखना बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना, 2 रूल्स चेंज करने हैं। रूल नंबर जो 2 है उसको पहले यूज करना है और रूल नंबर 1 को आपको सेकंड पे यूज करना है। मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब आपको कब लानी है, पहले लेके आनी है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेरोगेटिव सेंटेंस ओनली। ओके, अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जांपल। कॉन्टिन्यूअस का इसी तरह से होगा, लाइक सी इज टीचिंग इंग्लिश। अब चाहो तो कोई दूसरा भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, चलो दूसरा लेते हैं क्योंकि ये बार बार
सेम एग्जाम्पल हो गया, थोड़ा सा हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, ठीक है। He punishes me. Okay. He punishes me. उसने मुझे पनिश, सॉरी पनिशेस तो हम यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि हम अभी कौन सा यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे बेटा, डेफिनेटली वी विल यूज कॉन्टिन्यूस टेंस। पनिशिंग पे लिखेंगे हम यहाँ पे, he is punishing me, ठीक है। कॉन्टिन्यूस टेंस में अभी यूज हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, सेम रूल फॉलो करो। सबसे पहले क्या आ गया, मी को कन्वर्ट करो। अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको करना है कि आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ये आपका ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट में लाना है, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, आई होगी। तो सबसे पहले आपने लिखा आई। अब आई के साथ इनमें से क्या लगेगा, डेफिनेटली एम लगेगा। अब आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस है, आईएनजी वाली फॉर्म इसमें पहले से है, तो अब आपको क्या करना है, पहले से अगर कॉन्टिन्यूस टेंस है यहाँ पे तो आपको उनके साथ लगाना है बीइंग, BEING। अगर बीइंग आ गया तो पैसिव वॉइस कौन सी टेंस का हो गया, कॉन्टिन्यूस टेंस का हो गया। अगर बीइंग नहीं आ रहा है तो सिंपल प्रेजेंट का हो गया। इसी तरह से आई एम बीइंग, ओके। अब V3 यूज करनी है आपको, तो V3 हो गई यहाँ पे पनिश्ड, आई एम बीइंग पनिश्ड बाय। अब आपको पता है कि फिफ्थ रूल क्या है आपका, कि कन्वर्ट द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कि ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखोगे आप, और वो क्या है, हिम, ठीक है बेटा। इसी तरह से अगर नोट आएगा तो यहाँ पे नोट आ जाएगा, ही इज नॉट पनिशिंग मी। सेम सेंटेंस बनेगा ये, आई एम नॉट बीइंग पनिश्ड बाय हिम, तो ये नेगेटिव हो गया। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे आता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में बस ये रूल चेंज होगा, पहले वाला। ये सेंटेंस इस तरह से होगा, इज ही पनिशिंग मी। आपको भी पता है कि बस दो रूल चेंज करने हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले, अब आपको नहीं पता है कि आपका नया सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है, तो आप वैसे भी आइडिया लगा सकते हो। आपको पता है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो नया सब्जेक्ट आपका क्या होगा, आई होगा डेफिनेटली। तो आई के साथ आप क्या लगाओगे, एम, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, आई लिखोगे, ठीक है। बीइंग एम के साथ नहीं लिखना है, सब्जेक्ट के बाद लिखना है, ये ध्यान रहे, ठीक है। एम आई बीइंग पनिश्ड बाय हिम, ठीक है। तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में होगा तो ये इस तरीके से होगा। तो आपको जैसे मैंने बताया कि इंटेरोगेटिव में बस ये दो रूल चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आओ, बस यही चेंज करना है, बाकी सब सेम रहता है। लेट्स सी एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको मिलेगा हैज या हैव, और उसके साथ आपको पैसिव वॉइस में क्या लगाना है, बीन लगाना है, BEEN, बीन लगाना है, ठीक है। तो मैं कहूँ यू हैव डन इट, यू हैव डन इट, ठीक है। तो ये सेंटेंस बन गया। अब आपको रूल पता है, इसकी सबसे पहला रूल है कि कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, इट, दोनों सेम रहती है बेटा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों सेम रहती है। अब इट के साथ आपको पता है कि क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैव नहीं लग सकता, हैज या हैव तो लगाना ही है। उसके साथ आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है, इसके साथ ये ध्यान रहे, बीन, ठीक है। इट हैज बीन, ठीक है। अब V3, अब आपको पता है कि परफेक्ट टेंस है तो V3 मिलेगी आपको, ऑलरेडी यहाँ पे V3 है, तो आपको लगाना है डन और बाय। और यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है, सब्जेक्टिव भी यू और ऑब्जेक्टिव भी यू, तो आपको क्या लिखना है, यू। ये सेंटेंस बन गया, इट हैज बीन डन बाय यू। ये एक्टिव वॉइस में है और ये पैसिव वॉइस में है। अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या आने वाला है, नोट आने वाला है। सेम चीज यहाँ पे थर्ड प्लेस पे नोट लगा दोगे, कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी सारा सेम रहेगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव है तो सिर्फ दो चीजें चेंज होंगी, सब्जेक्ट वर्ब पहले होगी और सब्जेक्ट बाद में होगा। हैव यू डन इट, इसमें भी सेम चीज करना है, ठीक है। आपको हेल्पिंग वर्ब पहले ले आनी है। अब आपको पता है कि आपका नया सब्जेक्ट क्या है, इट है, तो इट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, हैज लगाओगे, तो आपको हैज पहले लाना है और सब्जेक्ट आपका बाद में लाना है। तो ये बन गया हैज इट बीन डन बाय यू और क्वेश्चन मार्क।
ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे. होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस, एंड इफ यू हैवंट, यू कैन डिस्कस ऑल द थिंग्स इन आवर लाइव क्लास.